There's news, there's sense, and there is nuisance. This show is all about that last bit. I'm Abhinandan Sekhri, filling in for your favorite host, Manisha Pandey. Now, in the last few days, the Bharatiya Janata Party has demonstrated its amazing commitment to all these grand and profound things like Beti Bachao, Beti Padhao, Aurat Hamari Mata Hai, we respect women, etc., in remarkable ways. A BJP leader from UP was seen in a video groping a lady. In another case, this former BJP candidate was trying to do, I don't even know what. Then there was another case, which I don't want to get into. I could go on and on, but the list is endless. I'd like to talk about one of the most high-profile cases from last year. This week, a Delhi court accepted a closure report by the Delhi police seeking to cancel the sexual harassment case involving a minor against former BJP Member of Parliament and Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh. Mind you, this is the same Delhi police that has been reprimanded by the court for how it's handled other matters regarding BJP, including Kapil Mishra's tweets. Now, the minor's father initially had accused Brij Bhushan of sexual harassment, but later changed his statement, saying Singh only discriminated against his daughter in wrestling. In June 2023, he told The Hindu, a newspaper, that he had changed his statement out of fear for his family's safety. You know, Brij Bhushan Sharan Singh itne gentle insan lagte hain, but I guess some people are afraid of the power he wields. That same month, Olympian Sakshi Malik said that the minor changed her statement after the family was threatened. Mind you, in the entire process, this man was not arrested even once. From the allegation to the closure report, we have seen people get arrested and go to prison for a lot less in accusations. But I guess the law works in mysterious ways. लेकिन ये अन्याय देखकर the nation's loudest voice decided कि enough is enough. He decided to ask tough questions of Brij Bhushan. He sent his reporters to get the real answers from the former WFI chief. He's been running away from Republic's cameras all day trying to dodge Republic, but the fact is he cannot escape the investigation. Yes, Arnab, I knew it. दिखाओ सारे देश को कि true power of journalism क्या होती है. Ladies and gentlemen, there's this ex-actor called Dino Moria, a very controversial guy. His name has come up in many controversial cases. यार, where's Brij Bhushan? Brij Bhushan nahi, he's questioning Dino Moria. Dino Moria? Why are you running away? Why are you running away? I'm not running away, mad or what? Why are you running away? Do you know why are you not responding to questions? There were financial transactions between you. There were guys. There were financial transactions. There were financial transactions between you and Ketan Kadam. Do you know? Was there any political influence in this? Could you respond? यार अर्नब, ये दिन आगे तुम्हारे. एक टाइम होता था जब तुम चिल्लाकर सलमान खान को ललकारते थे. मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर, अर्शे कहाँ है सलमान खान? चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम. And now you're used to this. There was a time when your reporters used to chase A-list superstars like Deepika Padukone. और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है. क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए. दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण. Now you have your reporters running around Dino Moria while showing ads of Vimal Zuba Kesari on the side. The बेचारे MDH वाले uncle is also saying, what the hell am I doing here? अगर reporters को नौटंकी करानी है अर्नब, at least have them run around some big celebrity. Dino Moria could not even get a reasonable opening. इसके पीछे भागकर कोई TRP मिलेगी तुझे? Think about it. रिपब्लिक नेटवर्क बहुत बुरा नेटवर्क है. You see, when it comes to asking tough questions to powerful people like BJP's Brij Bhushan, who some people are afraid of, I don't know why, he's such a gentle, lovely looking man. It takes more than a mic and a studio. It takes spine. And more importantly, independence from government and corporate ads. This week, our crack reporter Basant Kumar reported on how Brij Bhushan's son
Karan Bhushan Singh, despite being a first-time MP, was allotted a Type 8 bungalow at 21 Ashok Road. That's a Lutyens' Delhi bungalow usually reserved for senior ministers. Conveniently, it's the same bungalow his father had overstayed in जब उनको टिकट नहीं मिला था. बेटे को टिकट भी मिल गया, सीट भी मिल गया, बंगला भी मिल गया, और ये सब एलिगेशंस और क्लोजर रिपोर्ट के बीच घर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी. हाउ कन्वीनियंट. हालांकि बृजभूषण सिंह ने सांसद नहीं रहने के बावजूद भी यह घर कभी खाली नहीं किया. उनका नेम प्लेट 21 अशोका रोड पर चमकता रहा. दिसंबर 2024 में यह घर उनके बेटे करण भूषण सिंह को आवंटित कर दिया गया. पहली बार सांसद बने करण भूषण सिंह को टाइप 8 बंगला मिला है, और उन्हें यह बंगला क्यों मिला, किस आधार पर मिला, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है. For journalism that doesn't fear power, support independent media. Subscribe to News Laundry because when the public pays, the public is served. Is the legacy media serving you? Think about it. I'll tell you that aaram se, but first please be a part of the solution and pay to keep news free. Scan the QR code that's on your screen right now, or you can click on the link in the show notes below and become a subscriber and support journalism. And if you're a student and your first time job and have very little money, we have a Sasta 99 rupee plan for you to support journalism. I will show you that later, but first let's dissect the news media's role in a democracy. The news media's job is to amplify the concerns of common people and make them heard loud and clear by those in power. क्योंकि सरकार और पावरफुल लोगों का ऑफिशियल बजट होता है भाई, अपने कारनामे, उपलब्धियां, अचीवमेंट दिखाने का. All सरकारी departments and ministries have budgets to advertise and market themselves. PR पे पैसा खर्चते हैं. So do large corporations and so do political parties. कर दिखाते हैं हम, we make steel, we build India, etc. etc. You've seen all these ads, right? Of corporations. हर political party के ads भी देखे हुए आपने. You must have also seen the ads of various government departments. इन सभी के पास उस काम के लिए बजट होता है. न्यूज मीडिया का काम है कि आपकी आवाज बुलंद करके सरकारों और पावरफुल लोगों को आपकी बात पहुंचाएं, क्योंकि आपके पास करोड़ों का एड बजट नहीं है. टू मेक योर वॉइस लाउड फॉर दोज इन पावर, दैट इज द जॉब ऑफ न्यूज मीडिया. लॉजिक ये है कि अगर आपकी और मेरी परेशानी पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए वगैरह वगैरह सुन लें थ्रू न्यूज मीडिया, शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए. यू सी, बट इन न्यू इंडिया थिंग्स वर्क अ लिटिल हटके और उल्टा. न्यूज मीडिया ने सरकारी पीआर और सरकारी एजेंडा जोर जोर से लोगों तक पहुंचाने का ठेका ले रखा है कि रूलिंग क्लास जो बोलना चाहती है वो मीडिया के जरिए पक्का लोगों तक पहुंचाई जाएगी. अब ये काम फ्री में हो रहा है कि सरकारी एड बजट से, ये आप लोग सोच लीजिए. इस सरकारी पीआर का एक जबरदस्त नमूना हमारी मीडिया ने इस हफ्ते पेश किया, विच इज वाई while our wallets feel like it is ranked 140th globally, we were celebrating becoming the 4th largest economy in the world. India has become the 4th largest economy in the world. It's a great day to be told that the country is doing well. Powered by Modinomics, the Indian economy has become the 4th largest economy in the world, overtaking Japan just last week. हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है. देखिए, जब भारत के आगे सिर्फ अब अमेरिका, चीन, जर्मनी है, भारत चौथे नंबर पर आ चुका है सर, आपकी जानकारी के लिए. 4th largest economy. जापान को पछाड़ दिया, बजा दिया मोदी जी ने भारत का डंका पूरी दुनिया में. Now I know what you guys must be thinking कि भाई अभिनंदन, we have become the 4th largest economy, मतलब we are growing. It's a good thing. Why are you being a sadu? See, we don't want to be that sadu phoopaji in an Indian wedding. You know, the one who's never happy with the food, the decor, the DJ, how he's treated, how everyone's behaving, etc. हम चाहते नहीं कि हम वो काम करें, पर क्या यार, करना पड़ता है, क्योंकि बाकियों ने तो बारात में शामिल होके नागिन डांस करने की ठान ली है. Now you see, in an Indian wedding, चाहे शादी गधे से हो रही हो या इंसान से, माहौल हमेशा अच्छा रहता है. अच्छा रहना चाहिए, रौनक होनी चाहिए. आफ्टर ऑल जिंदगी सड़ी है, सो एनी बहाना, एनी रीजन टू सेलिब्रेट इज अ गुड थिंग. ये हम लोगों की पुरानी आदत है. इट्स एक्चुअली अ कोपिंग मैकेनिज्म. लेकिन हमें वो सड़ू फूफाजी बनना पड़ता है,
क्योंकि हमारी टीवी मीडिया जीडीपी सुनते ही टल्ली कजन्स की तरह डांस फ्लोर पे गिर पड़ती है, ऑफ बीट, ओवर एक्साइटेड, कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। यार लड़के वाले दहेज के लिए ना परेशान कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, टल्लियों के डांस करो। यार शादी जबरदस्ती लड़की की विशेष के अगेंस्ट हो रही है, कोई बात नहीं, खाना खाओ, दारू पियो और टल्लियों के डांस करो। ये पूरा डेकोर, ये खाना, ये पार्टी, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी के पैसे से हो रही है। डोंट कंप्लेन, जस्ट पी के नाच। This time, as soon as the CEO of Niti Aayog announced India has overtaken Japan to become the 4th largest economy, मीडिया का टल्ली डांस शुरू हो गया। Let's party! दुनिया में भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर आ गई है, वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 44वीं है। मतलब 40 का अंतर है। ना तो सेना के मामले में और ना ही इकोनॉमी के मामले में भारत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता है। मतलब कुछ भी चल रहा था। अगर मीडिया पब्लिक को थोड़ा बैलेंस और इन्फॉर्म्ड व्यू देती तो हमें अपना वक्त इस पर ना गंवाना पड़ता। We could have spent time commenting on racist gestures such as this one on prime time. ये छोटी आंख वाले गणपति, ये छोटी आंख वाले गणपति कहां से आते हैं? अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार इस चुमू का नाम क्या है? ऐश्वर्या। यार अर्नब भाई, इस ऐश्वर्या नाम के बालक को अगली बार मणिपुर भेजना रिपोर्टिंग करने ऑन ग्राउंड। I'd like to see how he reports from there with these छोटी आंख का gesture. Anyway, it has been stated by serious economists for a very long time that the GDP is not the best indicator of a country's actual progress or economic health. और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि GDP सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी का टोटल साइज बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो पैसा किसके पास जा रहा है, ये आम आदमी की जेब में जाता है, पर कैपिटा इनकम कितना है, एक एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है। इट डजंट टेल यू एनी ऑफ दैट। यार इंडिया की जीडीपी हमारे देश के साइज और पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से होनी चाहिए ना। जापान को ओवरटेक कर लिया। जानते हो जापान की पॉपुलेशन क्या है? 12.5 करोड़, हमारी करीब 150 करोड़। तो हमारे जो यंग व्यूअर्स है ना, उन्होंने शायद सत्ते पे सत्ता फिल्म नहीं देखी। This comparison reminds me of this scene. शुक्र है तुम लोगों में इतनी तहजीब तो है। So GDP, 4th largest, etc., etc. Very good. But daily life में लोगों का क्या हाल है? हमारी ad funded गोदी मीडिया ने ये बताया। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। You see, 10 people earning billions can make GDP look great, even if 100 crore people are struggling. It does not tell you about the quality of life, health indicators, medical facilities, education, housing, nourishment. मतलब हमने एक रिपोर्ट की थी पिछले महीने कि स्वच्छ भारत का डंका बजाने वाले हमारे प्रधानमंत्री, उनके और पार्लियामेंट हाउस से 5-7 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली में बच्चे सड़क पे बैठ के शौच करते हैं एवरी मॉर्निंग, वो भी एक आईएएस कॉलोनी के ठीक सामने। बट डजंट मैटर, जीडीपी जीडीपी। तो जीडीपी का अचार डालें हम, इसका असर क्या है? बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन मसल गेन करके कि बस पराठे खा के 2-4 लोगों की तोंद निकल रही है। What is the real distribution and impact of GDP and how much is it really per capita? ये भी चेक करना पड़ेगा ना। अब मैं फटाफट आपको कुछ और फैक्ट्स दूंगा जो बाकी न्यूज मीडिया को बार बार दिखाने चाहिए, आपको भी और सरकार को भी। ये नहीं कि इनका पीआर आप तक पहुंचाए। Today we might be the 4th on the GDP list, but when it comes to per capita income, we are at $2,880, much below Japan's $33,900, China's $13,000, and Germany's $57,700. These are the countries we claim to be competing with, अगर आप इन टल्ली बरातीस की मानो तो। Now, according to this Business Standard report, मोदी जी के राज में income inequality grew more than it was back in the 1950s. मतलब नेहरू के टाइम से भी ज्यादा। इसमें भी नेहरू की ही गलती होगी ना। Don't worry Modi ji, Nehru ji has done something wrong. Meanwhile, some startling facts. We spend only 3.3% of our GDP on healthcare and around 4.1 to 4.6% on education. Again, much below our GDP race के बाकी rivals.
चलो बहुत जर्मनी, चाइना, जापान वगैरह हो गया. लेट्स टेक मेक्सिको. मोर रियलिस्टिक, मोर आवर जोन, सीम्स मोर रिलेटेबल. सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर मेक्सिकन्स, क्योंकि वहां पर करप्शन इतनी है कि एक बंदा कनेक्शंस और करप्शन के दम पे खूब पैसा कमा सकता है. एंड इट शोज दैट पर कैपिटा इज आल्सो प्रीटी डिसेंट. आई एम नॉट सेइंग यहां भी ऐसा हो रहा है. यहां तो सब अपने हार्डवर्क से बिलियनर बने हैं, हार्वर्ड से थोड़ी ना, और करप्शन से थोड़ी ना. देखिए, कहीं से लग रहा है कि ये लोग हार्वर्ड गए होंगे या कॉलेज भी गए होंगे. आई डोंट नो. एनीवे, प्योर हार्डवर्क है. अब मेक्सिको में बिलियनर्स तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही इनकम इनइक्वालिटी भी जबरदस्त है. और इसी वजह से लाखों लोग हर साल इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, होपिंग फॉर अ बेटर लाइफ. एंड द आयरनी इज दैट मेक्सिको का पर कैपिटा इनकम इंडिया से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है. फिर भी अमेरिका दीवार बना रही है कि भाई मेक्सिकन अंदर ना आ जाएं. इट बिकेम अ ह्यूज पॉलिटिकल इशू ऑल्सो. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक है 107 आउट ऑफ 120 कंट्रीज, मतलब वी आर वन ऑफ द वर्स्ट. तो इस बड़ी बड़ी मीडिया वालों का असली काम यह है कि वो पावर में बैठे लोगों को याद दिलाएं कि आंख पे पट्टी बांधकर जीडीपी का डांस करना बंद कीजिए, जमीनी हकीकत समझिए. बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द मीडिया इज फंडेड बाय कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स, वो एड मनी के नशे में टल्ली होके नाचता रहता है. Rather than making sure the people's voice reaches those in power, हमारा मीडिया ये पक्का करता है कि पावरफुल वालों की आवाज आम आदमी तक पहुंचे, हर ड्राइंग रूम में, हर झुग्गी में, हर दुकान में. बट इन टाइम्स लाइक दीज इट्स इंपेरेटिव कि कुछ पब्लिक फंडेड सड़ू फूफा सीन में आ जाएं. थोड़ा संतुलन बना रहता है, क्योंकि बैलेंस बहुत जरूरी है. तो हम बधाई देने के लिए तैयार हैं. दीजिए बधाई. This is for congratulations, fourth largest economy in GDP. शगुन न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से. And one more बधाई. मोदी जी, you are going to be 75 this year. शगुन for you, because आपने बोला था ना 75 पे रिटायर होना चाहिए सबको पार्टी में. So we will miss you, but I'm noticing whoever is the art department, your shagun for Modi ji has Urdu in it. So please send them, you know where. Anyway, देखिए, हमारा काम है थोड़ा सड़ा हुआ फूफा बना रहना, और वो काम हम निभा रहे हैं. हाँ, वही शादी वाले फूफा जी जो हमेशा नाराज रहते हैं, खाना ठंडा है, टेंट ढीला है, ढोल वाला ठीक नहीं है, जीडीपी इज नॉट एक्यूरेट, लोग दुखी हैं. लेकिन इन सड़े फूफे की एक अच्छी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती है कि उनकी वजह से 2-4 फैसिलिटीज शायद सुधर जाएं, मे बी, शायद व्यवस्था थोड़ी बेटर हो जाए. हम सबकी जिंदगी बिगर और बेटर होनी देखना चाहते हैं, सिर्फ जीडीपी का साइज और कुछ बिलियनर्स का नेटवर्थ नहीं. ये कौन याद दिलाएगा सत्ता में बैठे लोगों को? ये संतुलन बनाना हमारा काम है, और हम ये काम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हम ना सत्ता से और उद्योगपतियों से एड्स लेके न्यूज नहीं चलाते. हमारे अमेजिंग जर्नलिस्ट और न्यूज प्रोफेशनल्स, ये जबरदस्त टीम आपके दिए सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट से चलती है. हम अपना काम तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हिस्सेदारी दें. ये 99 रुपीस वाला सब्सक्रिप्शन स्कैन करें, और फिलहाल इससे भी बहुत सपोर्ट मिलेगी. और जब हमारा पर कैपिटा इनकम $10,000 हो जाएगा, हम और मांग लेंगे. लिंक भी है शो नोट्स में वीडियो के नीचे, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. न्यूज लॉन्ड्री की टीम को सपोर्ट कीजिए और गर्व से बोलिए कि मेरे खर्च पर आजाद है खबरें, और सरकारी पैसे से पीआर यहां नहीं होता. इसी बैलेंस जरूरी है यार. सब पीआर करने लग गए तो मामला इतना बिगड़ जाएगा दैट वी विल बी डेमोक्रेसी ओनली इन नेम. तो हमें समझिए उस छोटे आलू की तरह जो सब्जी वाला जब तराजू पे तोल रहा होता है ना और इक्वल नहीं हो रहा होता है, एक छोटा सा आलू बैलेंस के लिए वो डाल देता है किसी भी तरफ. हम वही छोटा सा आलू हैं ताकि सिस्टम का बैलेंस बना रहे. रिमेन बैलेंस बट ऑल्सो स्टे मैड. इट्स द ओनली वे.